today's lecture we are starting the oxides of nitrogen. Okay, so in oxides of nitrogen, so nitrogen forms a number of oxides in different oxidation states. Names, formulas and preparations are given here. See, first is our N2O, that is a dinitrogen oxide, and here the oxidation state of nitrogen is +1. ओके हाउ 2x, तो वो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, चलो सबको पता ही होगा. 2x minus 2 equals 0, so 2x equals +2, so x equals +1, and it is prepared by heating the ammonium nitrate. Remember the name, ammonium nitrate. Okay, and we are getting N2O. It's a colorless gas and it's a neutral, means not an acidic or basic. Next is nitrogen monoxide, that is NO. Okay, so that is NO. Okay, and here the oxidation state is +2. Next, the formula is 2NaNO2, 2FeSO4, 3H2SO4. Then ferric sulfate is obtained and main NO gas is. It is also colorless and a neutral gas. Next one. Next is N2O3. It is dinitrogen trioxide, and here oxidation state is 3. That's why its stock notation name is nitrogen 3 oxide, and it is prepared by combining NO and N2O4 at 250 Kelvin. Okay, and we are getting N2O3. It's a blue solid and it is an acidic. Next is nitrogen dioxide, means NO2. It has oxidation number +4 and it is prepared by combining by heating the PbNO3 twice, and when it is heated at 673 Kelvin temperature, we are getting NO2, PbO and then O2. It's a brown gas and it is an acidic. Dinitrogen tetroxide, it's a N2O4, and it is formed by the dimerization of NO2. मतलब दो NO2 molecules combine होके हमें यहाँ पे मिलता है N2O4. ओके, तो N2O4 को अगर हम हीट करते हैं तो फिर कूल करते हैं तो N2O4 मिलेगा NO2 में से, और N2O4 को अगर हम हीट करेंगे तो हमें NO2 वापस मिल जाएगा. सो इट्स अ रिवर्सिबल. ओके, इट्स colorless solid, liquid and acidic. Dinitrogen pentoxide, N2O4, it's a +5. Then HNO3 and P4O10, then we are getting HPO3, and main is N2O5. Okay, it's a N2O5. It's a colorless solid and acidic. तो मतलब ऑलमोस्ट सब कलरलेस ही थे आगे, और यहाँ पे ब्लू सॉलिड, ब्राउन गैस, यहाँ पे कलरलेस सॉलिड, और यहाँ पे कलरलेस सॉलिड एंड एसिडिक. ये भी एसिडिक, ये भी एसिडिक, ये भी एसिडिक. ओके, आगे न्यूट्रल आए थे दोनों. बस सीक्वेंस से याद रखो, प्रिपरेशन से याद रखो. हर एक की प्रिपरेशन माइंड में बैठनी चाहिए. कोई भी पूछ सकते हैं आपको एरो करके कि विच ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन विल बी फॉर्म्ड from here, from this, or from this. Okay, टेबल मिनिमम 5 times लिखेंगे पर डे टिल 1 week, तो 110% फिर बाय हार्ट हो जाएगा. ओके, और मेरे पास ऐसे कोई यहाँ पे जड़ी बूटी नहीं है कि फिर मैं आपको यहाँ पे बताऊं. हाँ, जो फंडामेंटल था वो फंडामेंटल मैंने आपको समझा दिया. ओके, नेक्स्ट. चलो, अब इसके लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स हमें याद रखने हैं. तो चलो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के लिए थोड़ा 11th का रिवीजन कर देते हैं.
So for the expression of Lewis dot structure, we have to write one method, that is ANSU. ओके, तो ये चारों टर्म्स याद होनी चाहिए. चलो 11 का अपना रिवीजन हो रहा है. 11th में लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो चुका है अपना. यहां पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, total number of electrons of all the elements. Next, and total number of electrons of all the elements if it is completely filled. S, number of shared electrons. उसका फॉर्मूला है n माइनस ए. यहां पे n के लिए आपको याद रखना है, फॉर हाइड्रोजन this n equals 2, and for other elements n equals 8. S equals n minus a, and U means a minus s number of unshared electrons. Okay, चल first example is N2O4, sorry N2O. Okay, अब N2O में ये पता होना चाहिए उसका स्ट्रक्चर. इट्स अ लिमिटेशन ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर दैट वी कैन नॉट डिटरमाइन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. मतलब एटम कैसे अरेंज्ड होंगे वो हमें पता नहीं चलता है. चलो, तो अब सबके लिए हम ANSU फाइंड आउट करेंगे. तो एक बार कैलकुलेशन ध्यान से देख लो. A मीन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स. अब देखो, पहले तो 3 एटम्स, 2 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन. चलो, एक नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ओके, हाँ, यहाँ पे लिखना रह गया ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट. ओके, तो 2 नाइट्रोजन के 5 और ऑक्सीजन के 6, टोटल कितने हुए? 16. अगेन 2 नाइट्रोजन के 5 और 1 ऑक्सीजन के 6, टोटल कितने हुए? 16. n मीन्स कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिट. मतलब चलो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, तो फिर हम लिखेंगे यहाँ पे सबकी ऑक्टेट कंप्लीट होगी 8, और ऐसा 3 एटम्स है, 2 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो टोटल होंगे 24. s होंगे यहाँ पे n माइनस ए, इट इज 24 माइनस 16, दैट इज 8, एंड a माइनस s 16 माइनस 8. अब यहां पे ध्यान रखना है, ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स है शेयर्ड, वो आएंगे 2 एटम्स के बीच में. ओके, ऐसे. तो दोनों के बीच में देखो मिनिमम 1 बॉन्ड तो होगा ही यहाँ पे, नाइट्रोजन 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 ऑक्सीजन के बीच में. तो 4 बचे, तो 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे रख दो. ओके, तो मतलब 8 हो गए. अब कोई भी एलिमेंट बॉन्ड क्यों बनाएगा? टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. अब हर एक की ऑक्टेट कंप्लीट कर देते हैं. चलो, तो 1 2 3 4. चलो, इस नाइट्रोजन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8. मिडल नाइट्रोजन देख लो, 4 इस साइड 4 इस साइड, 8 हो गए. लास्ट ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हो गए ना. तो अब ऑक्टेट कंप्लीट हो गई. अब देखो, ये जो डॉट हमने रेड कलर से लिखे हैं वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, मतलब अनस्टेड इलेक्ट्रॉन्स है. तो वो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये 8 देखो यहाँ पे, ये 8 हमने पहले सेट किए, फिर ऑक्टेट रूल अप्लाई किया, और फिर ये 8 इलेक्ट्रॉन अपने आप सेट हो गए. ओके, तो इससे हमें ये पता चल गया कि ये N2O में कैसे बॉन्डिंग होगा, तो नाइट्रोजन के बीच में कैसे होगा. ओके, और यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में कैसे होगा. ओके, तो ये अपना N2O कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट इज N2O3.
तो N2O3 में ऐसे एटम सेट होते हैं 1 2 3 4, तो यहां पे दो इस साइड पे। अभी मैं यहां पे डायरेक्ट लिख देता हूं, आप अंशु मेथड से ट्राई करके फिर अपने आप ट्राई कर देना। ओके, क्योंकि अभी इसका टाइम निकल चुका है अपना, ये अपना 11th में क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने पूरा का पूरा फिर से करवाया। अब देखो ये जो ANSU है, इट्स अ शॉर्टकट मेथड, सो हमें डिस्क्राइब नहीं करना है, हमें तो डायरेक्टली ड्रॉ ही करना है, यूज डॉट स्ट्रक्चर। ओके, तो ये ध्यान रखो। अब देखो हर एक की ऑक्टेट कंप्लीट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4। ओके, तो ये हुआ N2O3। अब यहां पे रेजोनेंस होगा, चलो अब वो दिखाते हैं। रेजोनेंस में क्या होगा कि एक पैर यहां पे शिफ्ट हो रही है, ओके, और एक पैर फिर यहां पे शिफ्ट होगी। ओके, तो देखो होगा क्या, ध्यान से देखना, एक पैर यहां पे शिफ्ट हो जाती है, जस्ट अ मिनट, ये नहीं होगा। ओके, गलती से मैंने लिख दिया है, जस्ट एक पैर यहां पे शिफ्ट हो जाती है, तो होगा क्या, नाइट्रोजन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो 1 2 3 4 5 6, फिर यहां पे दो ही पैर होंगे। ओके, हाँ, मतलब हम इंडिकेशन ऐसे दिखाएंगे कि एक्चुअली होगा क्या, इंडिकेशन गलत हुआ है। एक्चुअली यहां पे ये वाली पैर यहां पे शिफ्ट होती है और ये वाली पैर बाहर निकलती है। ओके, जिससे यहां पे कितनी, अब एक ही पैर बचेगी, ये एक पैर यहां पे बाहर निकल गई, तो इन दोनों में कंटिन्यूअस एंड फास्ट कन्वर्शन होगा, देख लो टेक्स्ट बुक। ओके, देख लो ऐसे इंडिकेट किया है। ओके, तो अब देखो आगे, N2O हमने कंप्लीट किया अभी। ओके, फिर N2O3 भी मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। ओके, अब होता क्या है रेजोनेंस में, जनरली सब में काम N2O3 N2O4 और N2O5, इन सब में एक चीज कॉमन है कि जो रेजोनेंस है वो बहुत इजी है। क्यों पता है, क्योंकि जस्ट चेंज कहां पे होता है पता है, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। देखो यहां पे दोनों डबल बॉन्ड ऊपर की साइड है, तो वो डबल बॉन्ड क्रॉस में आ जाएंगे, सी स्ट्रैंड्स जैसे। ओके, तो मतलब जहां भी सिंगल बॉन्ड होगा ना, याद हमें यही रखना है कि वहां पे और टोटल 3 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स आएगी। देखो डबल बॉन्ड है तो दो, और डबल बॉन्ड है तो दो, और सिंगल बॉन्ड है तो टोटल 3 लोन पेयर्स होगी, दैट्स इट। जहां भी सिंगल बॉन्ड वहां पे 3, तो देखो या तो फिर एक साइड पे हो गए या तो फिर क्रॉस पे हो गए, N2O3 है इसलिए। सिमिलरली अगर हमने N2O4 कंसिडर किया, फिर बाद में हम NO और NO2 देखते हैं। ओके, सो डोंट वरी। अभी देखो N2O3 और N2O4 एंड N2O5, तो यहां पे भी स्ट्रक्चर है तो एकदम इजी। ओके, तो देखो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, वन साइड डबल बॉन्ड क्रॉस साइड, सिंगल बॉन्ड, दैट्स इट। ओके, सेम, और ये भी आप अंशु मेथड से ट्राई करना, आ जाएगा। सिमिलरली N2O5 में बस एक ही चीज है, यहाँ पे बीच में ऑक्सीजन आ जाता है, देख लो। बाकी रेजोनेंस भी सेम, क्रॉस में या तो फिर वन साइडेड, another side single bond, easy. Okay, so this one is our N2O4 and N2O5. next, अब हम लेते हैं एक्सेप्शन। ये मेन प्रॉब्लम क्या है, एक्सेप्शन का ही है। फर्स्ट इज अवर NO एंड अनदर इज NO2। यहां पे ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है।
ओके, 11th में शायद आपको याद हो तो ये दोनों एक्सेप्शन में ही थे, NO और NO2। यहां पे अगर हम A लिखे तो वो होगा 5 + 6 टोटल 11। N होगा अपना 2 8s, दोनों की ऑक्टेट कंप्लीट मतलब 16 होने चाहिए। S का फॉर्मूला है N-A, इट इज 16 - 11 दैट इज 5 एंड U इज A - S and it is 11 - 5 that is 6। ओके, अब NO तो होगा क्या देख लो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में 5 तो बॉन्डिंग कैसे होते हैं, तो 5 नहीं होते लेकिन कितने 4 होते हैं, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा और बाकी के कितने 3 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पैस में तो होते ही, मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगी, देख लो। ओके, अब एक्सेप्शन में सॉरी रेजोनेंस कैसे होगा कि जो दूसरा स्ट्रक्चर है उसमें सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, बाकी पूरा का पूरा एज इट इज, दैट्स इट, सिर्फ ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे ट्रांसफर होगा। सिमिलरली फॉर NO2 A N S U, चलो गिनो पहले से, तो A विल बी 5 फॉर नाइट्रोजन, आउटरमोस्ट नाइट्रोजन की आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स, 2 ऑक्सीजन मतलब दोनों में 6, 6 to the 12 and 5 17। N इज टोटल 3 एटम्स, हर एक की ऑक्टेट कंप्लीट होगी 24। अब इतना तो पता चल गया होगा, इफ A इज an odd number at that time octet rule will not be followed। okay, S का फॉर्मूला है N - A, 24 - 17 that is 7। okay, and U is A - S that is 17 - 7 that is 10। तो चलो ये 7 हम कैसे सेट करेंगे, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, और रेजोनेंस कैसे होगा देख लो, एक साइड पे सिंगल दूसरी साइड पे डबल, वही डबल यहाँ पे और यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर ही ऐसे सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। अब याद करो अगर नाइट्रोजन एक बॉन्ड बनाता है तो फिर कितने बोन पेयर, बोलो याद है कितने लोन पेयर कितने होंगे, एक बॉन्ड बनाता है तो याद रखो 3, 2 बॉन्ड्स बनाता है तो फिर नॉर्मली 2। चलो यहाँ पे 2 बॉन्ड्स बनाता है तो 2 सिंगल बॉन्ड देन 3, और यहाँ पे दोनों के बीच में कंटिन्यूअस एंड फास्ट कन्वर्शन होता है। ओके, चलो आगे, तो यहाँ पे दिया एक क्वेश्चन, व्हाई डज NO2 डाइमराइज, NO2 का डाइमराइजेशन क्यों होता है, तो देख लो NO2 में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यहां पे डबल, यहां पे सिंगल बॉन्ड, दूसरा और इसके पास भी सिंगल, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन, तो जब भी हम NO2 का टेम्परेचर लो करेंगे, याद आया ना अभी बताया दिखाया था कि 2NO2 कोल्ड N2O4 और फिर हीट करते हैं तो NO2 बैक मिलता है। ओके, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो वो कंबाइन होंगे मतलब शेयर होंगे ये सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन। जस्ट अ मिनट, ये रेजोनेंस की साइन नहीं है, कॉम्बिनेशन की साइन है। ओके, और कॉम्बिनेशन से क्या मिलेगा आपको, N2O4 मिलेगा। अब देखो याद करो NO2 का कलर कौन सा था, ब्राउन कलर था, और ये कलरलेस। ब्राउन कलर क्यों पता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, तो वो ब्राउन कलर का कंपाउंड है, और अगर हमने टेम्परेचर लो कर दिया तो फिर क्या होगा, N2O4 हो जाएगा, और जब उसको हीट करेंगे तो फिर क्या वापस ब्राउन कलर मिल जाएगा। ओके, ड्यू टू द डाइमराइजेशन ऑफ NO2। इजी, नेक्स्ट, चलो अपनी ये नाइट्रिक एसिड थ्योरी कंप्लीट हो गई है।
ओसवाल्ड मेथड थी। नेक्स्ट इज फॉस्फोरस एलोट्रोपिक फॉर्म्स। चलो अब इसकी बारी। Now, our next topic is phosphorus allotropic forms. So there are three allotropes of phosphorus. First is white, second is red, and third is black. So white phosphorus is a translucent white waxy solid. Waxy मतलब wax जैसा है, okay, मोमबत्ती जैसी होती है ना वैसे. It is a poisonous, insoluble in water, but soluble in CS2 and the glows in the dark due to chemiluminescence. It dissolves in boiling NaOH solution in an inert atmosphere giving pH3. pH3 की रिएक्शन मतलब प्रिपरेशन में ये इक्वेशन था. अगर फास्फोरस को NH के साथ हमने हीट किया, इससे हमें फॉस्फिन गैस मिलेगा एंड डाइनाइट्रोजन हाइपोफॉस्फाइड और सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फाइड, ऐसा भी इसको बोलते हैं. नेक्स्ट, अब देखो लास्ट लेक्चर में मैंने समझा दिया था, ये जो N2O4 P4 मॉलिक्यूल है ना, तो व्हाइट फॉस्फोरस इज लेस सॉल्युबल एंड देयरफॉर मोर रिएक्टिव देन द अदर सॉलिड फेजेस अंडर द नॉर्मल कंडीशन. क्यों? तो ध्यान से देखना. तो जब भी p ऑर्बिटल एक दूसरे से कौन से एंगल पे होती है, किसी को पता है भाई? p ऑर्बिटल्स एक दूसरे से कौन से एंगल पे जनरली होती है? उनका डम्बल शेप कौन सा एंगल पे होगा? px, py, pz ऑर्बिटल्स कौन से एंगल पे होगी? तीनों 90 डिग्री पे होगी. देखो ये फर्स्ट वन, ये सेकेंड वन और ये थर्ड वन. तो जब भी p ऑर्बिटल्स ओवरलैप होती है तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए. लेकिन यहां पे बॉन्ड एंगल है 60 डिग्री. मींस बॉन्ड एंगल जो होना चाहिए उससे कम है, जिससे क्या होगा बॉन्ड में, ये जो फॉस्फोरस p डैश p बॉन्ड है उसमें एंगुलर स्ट्रेन आएगा. एंगुलर स्ट्रेन क्यों आया? ड्यू टू लेस बॉन्ड एंगल. अगेन ड्यू टू लेस बॉन्ड एंगल हियर, यहां पे और एंगुलर स्ट्रेन आता है P4 मॉलिक्यूल में. सेकेंड थिंग, तो उसका रीजन क्या है कि 60 डिग्री. चलो सेकेंड रीजन. अब जनरली जब भी दो ऑर्बिटल्स कंबाइन होती है, अब आप याद करो मिथेन मॉलिक्यूल या तो फिर C2H6 मॉलिक्यूल, तो हम ऐसे बोलते थे कि दो p ऑर्बिटल्स, दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, दोनों हेड टू हेड ओवरलैप होगी ऑर्बिटल्स, ओके. और ऐसे इथेन मॉलिक्यूल मिलेगा, याद होगा ये आपको सबको. तो यहां पे कार्बन कार्बन के बीच में ये जो बॉन्ड है ना वो स्ट्रॉन्ग है. क्यों? क्योंकि यहां पे जब ओवरलैपिंग होगा तो हेड टू हेड होगा. अगेन यहां पे जो ओवरलैपिंग होगा वो ओवरलैपिंग हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगा. हेड टू हेड का मतलब ऐसा होता है, ध्यान से देखना. तो वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऐसे होगा कि दो ऑर्बिटल्स एक दूसरे से ऐसे कंबाइन होगी, ओके. इसको हम बोलेंगे हेड टू हेड ओवरलैपिंग. और जो वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, मतलब वो बॉन्ड लेंथ उनकी ज्यादा होगी, ओके. अब यहां पे क्या हो रहा है, चलो वो देखते हैं.
फॉस्फोरस फॉस्फोरस यहाँ पे पहले तो बॉन्ड एंगल कितना था 90 डिग्री, लेकिन 60 डिग्री पे जब कंबाइन हो गए तो वैसे उनके ऑर्बिटल्स ऐसे ही होनी चाहिए, लेकिन वो ओवरलैप होने के लिए वो थोड़ी मुड़ेगी, दूसरे का पार्ट एज इट इज, तो ऐसे थोड़ी मिलेगी, जिससे क्या होगा कि वो ओवरलैपिंग 100% नहीं होगा, बहुत कम ओवरलैपिंग होगा। तो फर्स्ट थिंग, ओवरलैपिंग बहुत कम हो रहा है, जिससे जस्ट उसको ऑक्सीजन टच हो और वो डायरेक्टली बर्न होने लगता है। मतलब इन एन एटमोस्फियर, इन नॉर्मल एटमोस्फियर एट नॉर्मल टेम्परेचर, इट कैन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव P4O10 डायरेक्टली। तो साइंटिस्ट ने पहले तो उन्होंने देखा कि ये जो फॉस्फोरस है जब भी हम बाहर रखते हैं तो फिर वो तो अपने आप उसमें से फ्यूम्स निकलने लगते हैं, एंड इट कैचेस द फायर इन एयर एट नॉर्मल टेम्परेचर ऑल्सो। तो उसका रीजन क्या है? तो उसके दो रीजन है। फर्स्ट रीजन क्या है कि यहाँ पे ओवरलैपिंग हिट टू हिट नहीं है, एंड सेकंड थिंग, बॉन्ड एंगल होना चाहिए 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पे 60 डिग्री है, सो देयर इज एंगुलर स्ट्रेन इन द मॉलिक्यूल। मतलब ये जो फॉस्फोरस फॉस्फोरस एटम्स हैं तो वो हमेशा ब्रेक करने को ही वो ट्राई करेंगे। तो इसी वजह से एक तो बॉन्ड ओवरलैपिंग जो हो रहा है वो बहुत वीक ओवरलैपिंग हो रहा है, एंड सेकंड थिंग, बॉन्ड में स्ट्रेन है, जिससे क्या होगा कि वो रेडिली वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो मतलब जस्ट ऑक्सीजन टच हो और वो डायरेक्टली बर्न होने लगता है, एंड इट गिव्स डायरेक्टली द P4O10 मॉलिक्यूल। ओके, चलो तो समझ में आया होगा सबको। ओके, तो ये हुआ व्हाइट फॉस्फोरस और उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक। ओके, नेक्स्ट, second is red phosphorus. So this red phosphorus is obtained by heating the white phosphorus at 573 Kelvin temperature in an inert atmosphere for the several days, and then after, white phosphorus is converted into red phosphorus. Next, when red phosphorus is heated under the high pressure, a series of phases of black phosphorus is formed. Red phosphorus possesses iron gray luster, and it is odorless, non-poisonous, and insoluble in water, as well as in CS2 also. Chemically, red phosphorus is much less reactive than white phosphorus. मतलब जितना white phosphorus reactive था कि just ऑक्सीजन उसको टच हो और वो डायरेक्टली बर्न होने लगे, तो इसमें यहाँ पे नहीं होता है, और it doesn't glow in the dark. तो ये है characteristics of red phosphorus. Next, ओके, देखो रेड फॉस्फोरस की फिगर, वो भी इजी है। So now this one is the last topic of today's lecture. रेड फॉस्फोरस देखो उसका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, मतलब जो नॉर्मल फॉस्फोरस था वो चलो अभी दिया था ना, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? तो ये जो बॉन्ड था तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, मिडल वाला। ओके, और इसकी लॉन्ग चेन बन जाती है, देख लो। Okay, that's why it is stable. Last one is the black phosphorus. It has two forms of alpha and beta black phosphorus. मतलब पहले था white phosphorus, second था red phosphorus वाला। ओके, और उसके बाद ब्लैक फॉस्फोरस, और ब्लैक फॉस्फोरस में भी दो पार्ट है। अब हमें याद रखना है, बीटा black phosphorus is obtained from beta black phosphorus is obtained from red phosphorus and alpha, just a minute, गलती हो गई, अल्फा फॉस्फोरस,
alpha black phosphorus is prepared from red phosphorus and beta black phosphorus is prepared from white phosphorus. तो यहाँ पे टेम्परेचर और रिएक्शन कंडीशन याद रखनी है. अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस इज फॉर्म्ड व्हेन रेड फॉस्फोरस alpha black phosphorus is formed when red phosphorus is heated in the sealed tube at 803 Kelvin temperature, and it can be sublimed in air, and it has opaque monoclinic or rhombohedral crystals. It doesn't oxidize in air. और बीटा ब्लैक फॉस्फोरस वो मिलेगा हमें व्हाइट फॉस्फोरस में से. अगेन अल्फा मिलता है रेड में से और बीटा मिलता है हमें व्हाइट फॉस्फोरस में से. ओके, सो बीटा ब्लैक फॉस्फोरस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग द व्हाइट फॉस्फोरस एट 473. रेड फॉस्फोरस मिलता था हमें 803 केल्विन टेम्परेचर, अरे सॉरी, अल्फा हमें मिलता था रेड फॉस्फोरस में से when it is heated at 803 Kelvin, and beta हमें मिलता था white phosphorus में से when it is heated at 473 Kelvin temperature, and it doesn't burn in air up to 673 Kelvin. Okay, so thus we are getting the black phosphorus. Okay, तो चलो ये सब याद रहना चाहिए. तो फिर आज का इतना आपका होमवर्क है आपके लिए कि पहले तो आज का जो हुआ वो एक बार कंप्लीट कर दो, मीन्स वो 2 टाइम्स लिख दो और लर्न कर दो. ओके, एंड नेक्स्ट चैप्टर नंबर आगे, मतलब ये जो आगे की थियोरी है ना अबाउट, मैं बताऊँ तो केमिकल रिएक्टिविटी और नाइट्रोजन और अमोनिया HNO3 देन PCl3 PCl5. ओके, ये 1 टाइम लिख दो जिससे वो आपका ओल्ड टॉपिक आपका एक बार रिवाइज हो जाए, और आज के जो भी टॉपिक्स हुए वो 2 टाइम्स लिख दो. ओके, जिससे आपका ये लर्न हो जाएगा. ओके, देन गुड बाय.